So, friends, welcome and Jai Mashiki sabko. Official, the real service, the actual service will start at 11:30. But as we do always, pre-service presentations. So, आप क्योंकि आ गए हैं, तो हम आपका समय का कदर करते हैं. We honor your time, and then so that we will prepare ourselves for the time of worship. हम अपने आप को worship के लिए तैयार करेंगे. और आज बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है. आज का जो दिन है ये है सीनियर सिटीजन्स डे. आई मीन एज फार एज वर्शिप इज कंसर्न, ये कोई सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि लास्ट टाइम वी हैड द चिल्ड्रन, उससे पहले हुआ था वुमेन्स. तो आज जो लीड करेंगे हमें वो सीनियर सिटीजन्स करेंगे. तो सीनियर सिटीजन्स के द्वारा कुछ विशेष प्रेजेंटेशंस हैं. और we must believe it's never too late to learn anything. So you had already once heard the flute played by Mr. David from Dharamshala. You will have his presentation, and then after that I will announce the second presentation, which will be a surprise one for you. तो रीटा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप छोटी सी दुआ कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं. योर वीडियो कैनॉट बी you cannot be seen because your video is not working camera, but you can pray. करूं बिशप साहब? Yes ma'am. हिंदी में करूं, अंग्रेजी में करूं? आप जिस whatever. अच्छा, if I'm more comfortable in English, sir, so I'll yeah. Sure, do it in English if you don't mind. No problem. Loving Heavenly Father, Almighty God, Creator of the world, Protector of all of us, we come before you this morning to offer you thanks and praise for all your blessings, for all your mercies. We thank you, Father, for giving this opportunity to get together this morning, to worship you, to praise your great name. Bless all of us who are here together participating in this service. We ask for your blessing and your presence in our midst this morning. We especially ask for your blessings on Bishop Saab, who is the leader in the diocese, and all other leaders of our diocese, O Lord. We ask your blessings on the city of Amritsar, on the diocese of Amritsar, and on our country, Lord. Heal everyone, Lord, so that this corona menace, the COVID-19 menace, goes away from our city, our country, and the world. We ask this in your precious name. Amen. Amen. Thank you ma'am. Thank you, अभी Mr. जो बांसुरी वादन करेंगे मिस्टर प्रेम डेविड, और उन्होंने खुद सीखा है, कोई मास्टर उनका नहीं था. So let us enjoy the flute music from Mr. Prem David from Dharamshala.
Thank you. Thank you so much, Mr. Prem David. Prem David was working with the SCDP for a long, long time. और आज धर्मशाला में वो काफी एक्टिव हैं चर्च में, हमेशा वो एक्टिव रहें. Now the second surprise item is from two very special people, Reverend Ayub Daniel and Mr. Chaman Lal. Mr. Chaman Lal is a worshipper and is a member of Christ Church Cathedral. He plays mouth organ. और रेवरेंड आयुब डैनियल, आप में से काफी लोगों के लिए आप कहेंगे कि वो छुपा रुस्तम है, जिन्होंने कि वेरी रिसेंटली ही स्टार्टेड लर्निंग फ्लूट. तो ये एक जुगलबंदी है. रेवरेंड आयुब डैनियल एंड मिस्टर चमनलाल, दे आर गोइंग टू प्ले ए पॉपुलर ट्यून. इनके लिए हम ताली बजा दें, मिस्टर प्रेम डेविड के लिए और रेवरेंड आयुब डैनियल चमन लाल जी के लिए. As I said, it is never too late to learn, और these people have been great inspiration for me. मेरे लिए तो ये inspiration है ही, और मे बी आप सबके लिए भी. तो जो टैलेंट्स हैं हमारे डायसिस के अंदर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर, हम चाहेंगे इवन बच्चे भी कुछ म्यूजिक देना चाहते हैं, और वुमेन्स, हम चाहेंगे कि आप अपना जो है टैलेंट खुदा की महिमा के लिए आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं. आप वीडियो भेज सकते हैं और ट्राई टू मेक इट विद इन 3 मिनट्स, और आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे. सो दिस इज द टाइम we need to listen to another
special number, not by an individual, by group, St. Paul Church, Jamuk. और this is a very special song जो बिशप अजीज विलियम डायसिस के बिशप रहे, उन्होंने ये इसको कंपोज किया था, म्यूजिक दिया था, and it is a great honor that one of the bishops of the Diocese of Amritsar, it is his song that Jammu congregation, they are in honor of him going to sing. तो Jammu सेंट पॉल चर्च कांग्रेगेशन के जो सीनियर सिटीजन्स ग्रुप वो एक गाना प्रस्तुत कर रहे हैं, कंपोज्ड बाय द लेट बिशप अजीज विलियम। ये गाना तो लंबा है 8 मिनट, बट हमने उसको थोड़ा सा छोटा करके प्रेजेंट कर रहे हैं।
Thank you. It was I really appreciate कि जम्मू के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं अभी भी उनमें दम है और खुदा के लिए इतना प्यार है। खुदा आप सबको सुरक्षित रखे और अंत तक आपको यूज करते रहे। जब हम खुदा के चरणों में आते हैं हम जरूर धन्यवाद और प्रशंसा के साथ आते हैं और हम एक जो जबूर है उसके साथ उसको पढ़कर हम इस उपासना को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बोथ इंग्लिश एंड हिंदी है, तो आप मेरे साथ पढ़िए क्योंकि ये एक पारंपरिक रीति से ना पढ़िए पर दिल से, दिल की गहराई से उसको पढ़िए। सो लेट अस रीड दिस साम टुगेदर एंड प्लीज फॉलो मी एंड प्लीज रीड विथ मी। हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी की प्रजा और उसी की चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करो करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, जब हम तेरे सम्मुख आते हैं तेरी महानता को हम देख पाते हैं। जब से हम इस दुनिया में आए तब से लेकर आज तक तूने हमारा देखभाल किया, हर एक चीज हमें दी। तू हमसे तो कुछ नहीं चाहता है, चाहता है कि हम तेरे से प्यार रखें, तुझे अपना दोस्त बनाएं, तेरे से बातचीत करें, अपने प्रार्थना के विषयों को तेरे सामने लाएं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को एप्रिशिएट करें, एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के लिए सोचें, पर हम तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। तेरे पिता परमेश्वर, ऐसे होने दे कि हमारे दिल में तेरे लिए हमेशा शुक्रगुजारी हो, हमेशा हम तेरा धन्यवाद कर पाएं, क्योंकि इस दुनिया में हमारा जो समय है उसकी सीमा हमें पता नहीं है, पर हर पल तेरा दान है। इस तोहफे के लिए हम तेरा धन्यवाद करें। ये जो हमारा परिवार है जिसमें कि लोग भिन्न भिन्न जगह में रहते हैं, उनमें से जो कि आज हमारे जूम फैमिली वर्चुअल वर्शिप में शामिल हैं, सबको तेरे चरणों में रखते हैं। अपने आप को हम तेरे हाथों में अर्पण। पिता हमें आशीष दे ताकि हम सच्चाई के साथ तेरी उपासना कर सकें। रेवरेंड राणा खान जिनके द्वारा आज तेरा वचन हमें मिलेगा, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। रेवरेंड राणा के ऊपर पवित्र आत्मा दे। हम इस प्रार्थना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम में चाहते हैं, आमीन।
अभी हम एक गाना गाएंगे सब मिलकर। ये एक जबूर है जो नॉन पंजाबी है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिस इज समथिंग यूनिक कि पंजाबी भाषा में पूरे साम्स वो गाने के रूप में गाए जाते हैं और दिस इज नॉट जस्ट यूज इन वर्शिप बट दिस इज पार्ट ऑफ द वे ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। सुबह से उठकर झाड़ू लगाते वक्त, साफ सफाई करने वक्त, काम के लिए जाने से पहले कोई भी दिन में समय हो, लोग इन जबरों को गाते हैं। तो आइए हम पास्टर पीटर हंस के साथ मिलकर ये गाना गाते हैं, रहेगा नाम सदा तीकर। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा के लिए एक ज़बूर गाएं। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमां दियां धन्नवाद गावन, ते कौमां दियां धन्नवाद गावन। जो इसराइलियां दा रब खुदा है, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है, अजाइब कम करदा धन सदा है। खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदा तीकर मुबारक हो रहेगा, सदा तीकर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूसरी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूसरी बारी। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा के वरदानों की वजह से आज हम स्वस्थ हैं, सही सलामत हैं। आइए जब हम खुदा की महानता को एक्नॉलेज करते हैं, उसके साथ साथ हमारे फॉलननेस को भी हम एक्नॉलेज करते हैं कि कैसे हम गिर गए, कितने बार गिर गए, कितने बार खुदा को भूल गए, कितने बार हम अपनों को भूल गए। कभी कभी थोड़ा सा एप्रिशिएट करना भी हमसे नहीं हो पाता है।
और दूसरे की मदद करना वो तो दूरी की बात है। तो खुदा चाहता है कि आप खुदा के सामने अपने दिलों को खोलें और हम उससे माफी मांगे। God wants us to come to his presence with a penitent heart and to ask for forgiveness, and he is always willing to forgive us. And therefore, let us join in the prayer of confession to be led by Mrs. Sabita Kaul from Srinagar. श्रीनगर से बहन सबिता कौल हमें प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम गुनाहों का इकरार करें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। आमीन। जिसे मैंने कहा कि हम इसमें कोई डाउट ना करें कि खुदा हमें माफ करेगा। वो तो बाप बैठा है ताकि बेटा बेटी मेरे पास आकर वो मेरे से बातचीत करें, अपने दिलों को खोलें। तो कम लेट अस जॉइन इन द प्रेयर ऑफ assurance of pardon. The Almighty and most merciful God grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life and strength of the Holy Spirit. सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की समझ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। This is the time of praise and worship. पास्टर पीटर हंस हमें लीड करेंगे और हम उनके साथ मिलकर थोड़े समय के लिए वर्शिप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम मिलकर खुदावंद की महिमा के लिए एक ज़बूर गाएं। आसरा मेरा है तू ही है खुदा, मेरा मालिक है तू मेरी सुनने दुआ। आइए मिलकर गाएंगे। आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ, मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ, आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, आसरा मेरा है तू ही आए खुदा। खुश ना हो वन मेरे बैरी मेरे तो, 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 ओ ना फुल्लन वेख में हाँ डिग पिया, ओ
ना फुल्लन वेख मैं हाँ डिग पिया। मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ, मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ। आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, आसरा मेरा है तू ही आए खुदा। मेरे वैरी जूंदे हन जोरावर, मेरे वैरी जूंदे हन जोरावर, मेरे वैरी जूंदे हन जोरावर, मेरे वैरी जूंदे हन जोरावर। ऐवें कर दे वैर मेरे ऐ खुदा, ऐवें कर दे वैर मेरे ऐ खुदा। मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ, मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ। आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, आसरा मेरा है तू ही आए खुदा। नेकी दे बदले ओ कर दे हन बदी, नेकी दे बदले ओ कर दे हन बदी, नेकी दे बदले ओ कर दे हन बदी, नेकी दे बदले ओ कर दे हन बदी। नेकी करदा मैं ओ दुख देंदे सदा, नेकी करदा मैं ओ दुख देंदे सदा। मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ, मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ। आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, आसरा मेरा है तू ही आए खुदा। डिगण वाला दुख है सामने, मैं हाँ डिगण वाला दुख है सामने, मैं हाँ डिगण वाला दुख है सामने, मैं हाँ डिगण वाला दुख है सामने। शर्मा दे नाल अपने मन दा हाँ गुना, शर्मा दे नाल अपने मन दा मैं गुना। मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ, मेरा मालिक है तू मेरी सुने दुआ। आसरा मेरा है तू ही आए खुदा, आसरा मेरा है तू ही आए खुदा। थैंक यू पास्टर पीटर हांस। अभी हम प्रभु के वचन से सुनेंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से 7वीं आयत। मिस स्टेला क्लेमेंट जो कि क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल अमृतसर का मेंबर है, मिस स्टेला विल रीड दिस लेसन टू अस।
अब पवित्र शास्त्र में से अंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। लूका रसूल की अंजील उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक यूं लिखा है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। ये अंजील का हिस्सा है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। थैंक यू सिस्टर स्टेला। अभी आज के वचन के लिए हम दुआ करेंगे और हमारी अगुवाई करेंगे सिस्टर परवीन गिल, जो कि सेंट पॉल चर्च अमृतसर के मेंबर हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ आपके सेवक के लिए जो प्रभु जी जिनका नाम राम यूके के हैं। प्रभु आप उनको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और अपने नाम की खातिर उनको इस्तेमाल करें। जहाँ पर भी वो प्रचार करेंगे आशीष दें, बरकत दें और प्यारे की पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। प्रभु के नाम से आपका धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर परवीन। नाउ टाइम फॉर सर्मन और हमारे प्रिय मित्र, माय डियर फ्रेंड एंड माय ब्रदर रेवरेंड राना खान, जो ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं पर अभी यूके में सेटल हैं और चर्च ऑफ इंग्लैंड में वो पादरी हैं। आपने उनको सुना है एंड बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिमांड कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहा कि उनको फिर से बुलाइए प्रचार के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड रेवरेंड राना खान दैट ही readily agreed. Reverend Rana Khan, thank you for being willing to us. I am so grateful to you and your family. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैं उनके पास जाता हूँ, उनके घर में रहता हूँ, उनके घर में खाता हूँ, उनके घर में सोता हूँ, तो उनकी जो मेहमान निवाजी जो है उसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। एंड ही हैज बीन ए वेरी डेडिकेटेड पास्टर, एक्टिविस्ट मैं कहूँगा, जो कि न्याय के लिए और खासकर सब धर्म के लोगों को लेकर शांति की स्थापना के लिए वो काम करते हैं। और जो एशियन कम्युनिटी है उनके बीच में भी उनका बहुत काम है। और अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे साथ दिया है जो साधु सुंदर सिंह, उनकी मेमोरी में कुछ रिसर्च, कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रोग्राम करने में वो हमारी सहायता कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रेवरेंड राना खान, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर यू to speak to us. Whatever God has spoken to you, please share. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद हम सबको अपनी अकल, दानिश और हिकमत अता करे कि जो कुछ कलाम मुकद्दस में से हम आज सीखें उसे अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करें। कलाम मुकद्दस में से हमने मुकद्दस लूका की इंजील के 15वें बाब की पहली से
7वीं आयत तक सुना है। ये आयत बहुत हवालों से अहम है, क्योंकि इन आयत में खुदावंद यसु मसीह शरा के उलेमा, आलिमों, स्कॉलर्स, रेबाइज, उनके कुछ कंसर्न्स थे जिसका वो पूरे तौर पर इजहार तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ अपने मुंह में ही बुड़बुड़ा रहे थे। ये वैसे ही होता है जैसे कई दफा हम अपने गांव में या मोहल्ले में या अपने पड़ोस में या अपने चर्च में या किसी जगह पर भी कोई चीज देखते हैं, कोई काम होता हुआ देखते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता या हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या कंसर्न्स होते हैं, लेकिन कई दफा एहतरामन, कई दफा खौफ से, किसी भी वजह से हम उसका इजहार नहीं कर पाते, तो अपने ही मुंह में बुड़बुड़ाते हैं या एक दूसरे को इशारे करते हैं। तो कई लोग की कोड़ियां मार देने तुझे कि वेख्या की कहन डे है, और अगर आप उस शख्स को देखने के लिए उन्हें कोड़ी मारी है तो फिर आपके अंदर एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा होती है। आपको समझ तो आ जाती है कि ये मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं होता, कह सब कुछ दिया होता है। तो फिर आप उनको किसी ना किसी तरीके से जवाब देने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं कि एवं एक दूजे ਨੂੰ सैनता ना मारो, एक दूजे ਨੂੰ पौड़ियां ना मारो, मेरी गल ध्यान ना सुनो, इससे ਤੁਹਾਡਾ ही कोई फायदा है। मैं अपने इस आज के सरमन में, जिन्होंने पिछली दफा मुझे सुना था, मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी में और इंग्लिश में और उर्दू में और कहीं कहीं पे कोई पंजाबी का भी टच दे दूं ताकि आपको समझ आती रहे कि बात हो क्या रही है। तो मुकद्दस लूका की इंजील का 15वां बाब कई लिहाज से अहम है। इसके अंदर 3 पैराबल्स हैं। पहली तमसील जो आपने सुनी है वो एक भेड़ के खो जाने की है। दूसरी तमसील वो एक सिक्के के, एक कॉइन के खो जाने की है, और तीसरी तमसील एक बेटे के खो जाने की है। खुदावंद यसुह मसीह ने ये 3 तमसीलें यहूदियों के, शरा के आलिमों के, फकीहों और फरीसियों के, फैरिसीज के जो कंसर्न था, जो वो मटर कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, उनके जवाब में उनको कही। क्यों? क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि ये आदमी अच्छा है, नौजवान है, शरीफ है, सब कुछ है, लेकिन ये इन महसूल लेने वालों के साथ, ये चुंगी लेने वालों के साथ, टैक्स कलेक्टर के साथ और बुरे लोगों, गुनहगारों के साथ क्यों बैठता है। टैक्स कलेक्टर्स किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, लोग हर कोई उसके खिलाफ ही अक्सर होता है। उसकी कई वजूहात होती हैं। कई दफा हमें लगता है कि वो हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। यहां पे भी, बरतानिया में भी, ये टैक्स डिपार्टमेंट से सब भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजर आपकी जेब के ऊपर होती है, वो आपसे पैसा लेते हैं, और उनका पर्पस ये होता है कि वो पैसा लेकर गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट आपको सहूलियत देती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, सिक्योरिटी देती है, सड़कें बनाती है, सेहत की सहूलियत देती है। तो टैक्स कलेक्टर्स जो थे वो बहुत बुरे समझे जाते थे उस दौर में, क्योंकि टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो रोमन एम्परर को चला जाता था, और वो उन लोगों के ऊपर शायद इतना खर्च नहीं होता था, और उसके इव्ज रूमी पुल बनाते थे, सड़कें बनाते थे, लेकिन बहुत सारा पैसा अपने महलों पर और अपनी अफवाज पर भी खर्च करते थे। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से टैक्स का निजाम वो लोगों को, और जो हुक्मरान होते हैं, जो ताकतवर तबका होता है, उनके अंदर जुदाई पैदा करना शुरू कर देता है। आप में से बहुत से लोग हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ होंगे। एम्परर अकबर, जो बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख का एक इंतहाई अहम हुक्मरान गुजरा है, उसके बारे में कहा जाता है कि एक दफा वो आम आदमी का भेष लेकर लोगों में चला गया,
कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और खास तौर पे जब वो आगरा के करीब फतेहपुर सीकरी के इलाके में गया, वहां पर बहुत से हिंदू थे और वो भेष बदलकर वहां पर उनमें फिर रहा था, और लोगों ने उसको बताया कि बादशाह बहुत बुरा है और हुकूमत बड़ी बुरी है, क्योंकि वो हिंदू यात्रियों से टैक्स लेते हैं। और टैक्स लेकर करते क्या हैं, अपने महल बना रहे हैं, अपनी अय्याशियां उड़ा रहे हैं, और हम लोग मर रहे हैं। और बहसियत एक अच्छा बादशाह होने के उसने लोगों की सुनी और वापस गया, और अगले दिन अपने दरबार में उसने हिंदू यात्रियों पर जो टैक्स लगाया गया था उसको खत्म कर दिया, और कहा कि जब लोग अपने खुदा से मिलने के लिए जाएं, खा वो पुल क्रॉस करें, खा वो सड़कों पर चलें, खा उनकी गाड़ियां, रेड़े, गड्ढे जो कुछ भी हैं वो सड़कों पर चलें, हुकूमत का काम है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करना, क्योंकि वो अपने खुदा से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह से उसको इज्जत भी मिली। यीशु मसीह के दौर में टैक्स कलेक्टर्स को बुरा समझा जाता था, फकीह फरीसियों को बुरा समझा जाता था। ये इस सारी चीज का पसे मंजर है। अब यीशु मसीह के दौर में जब ये सारा वाकया हुआ, ये सारी बातचीत हुई, तो यीशु मसीह ने ये 3 तमसीलें उनको कहीं। आज आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि आज मुकद्दस लूका की ईद है। टुडे इज द फीस्ट ऑफ सेंट लूक, और आज की तलावत जो है वो लूका की इंजील में से हमने सुनी है। लूका यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से तो नहीं था, लेकिन वो मुकद्दस पौलुस का, पॉल का बड़ा करीबी रफीक और दोस्त था, उसका साथी था। और मुकद्दस पॉल के साथ, सेंट पॉल के साथ उनकी बहुत ज्यादा अच्छा वक्त गुजरा। उनसे मंसूब 2 किताबें जो नए अहदनामे में, न्यू टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं, द गॉस्पेल ऑफ लूक एंड द बुक ऑफ एक्ट्स, हमें बहुत ज्यादा थियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन फराहम करती हैं क्राइस्ट की मिनिस्ट्री और क्राइस्ट के रसूलों की मिनिस्ट्री और चर्च की मिनिस्ट्री को दुनिया में फलता बढ़ता हुआ देखने में। लूका की नजर से जब हम यीशु को देखते हैं तो हमें बहुत दफा यीशु इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जो सामरियों के साथ, जो महसूल लेने वालों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, पिसे हुए तबके के साथ, मजलूमों के साथ, बेआवाज लोगों के साथ और दुखियों के साथ अपना वक्त गुजारना पसंद करता है। उसे अपनी इज्जत की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इसकी फिक्र नहीं थी, उसे इस बात की फिक्र थी कि लोगों को मेरी जरूरत है। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि अगर मैं इन लोगों से मिलता हूं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये तो बुरे लोगों से मिलता है। उसे इस बात की जरूरत थी कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर की जरूरत बीमारों को होती है, अगर मैं उस्ताद हूं तो उस्तादों की जरूरत उन लोगों को होती है जो इल्म और तालीम के तलबगार हैं, इसलिए मैं उनसे मिलूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। लूका जो अपने पेशे के लिहाज से फिजिशियन या डॉक्टर या तबीब था, अपनी बुलाहट के लिहाज से वो इवेंजलिस्ट था, एक मुबशर था। और यहां पर हम ये देखते हैं कि इन 3 तमसीलों को करके मुकद्दस लूका ने एक बड़ा खूबसूरत मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया है। मैं आपकी तवज्जो इन 3 तमसीलों के थोड़े से मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप तीनों तमसीलों से बखूबी वाकिफ हैं और इन तीनों तमसीलों को एक एक करके मुख्तसर प्रेजेंट टू यू फ्रॉम मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। पहली तमसील जिसमें 100 भेड़ें थी, एक भेड़ खो गई, और एक भेड़ खो गई तो कितने % नुकसान हुआ? 1%। दूसरी तमसील, उसमें 10 सिक्के थे और 10 सिक्कों का एक बना हुआ हार था, और 10 सिक्कों में से एक सिक्का खो गया तो कितने % नुकसान हुआ? 10%, 10%। और आखिरी तमसील, एक बाप के 2 बेटे थे,
एक खो गया तो कितने परसेंट नुकसान हुआ? 50%। सो पहली तमसील परसेंट, भेड़ खो गई। दूसरी तमसील, एक कॉइन या सिक्का खो गया, 10%। और तीसरी तमसील, दो ही बेटे थे, एक खो गया, 50% नुकसान। ये 1%, 10% और 50%। अगर आप अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन तीनों तमसीलों की तरतीब इस तरह से होनी चाहिए, तो जो ज्यादा नुकसान हुआ है, और वो तो वैसे भी इंसान का नुकसान हुआ है, इररिपेयरेबल लॉस है, उसको तो नंबर 1 तमसील होनी चाहिए थी। प्रोडिगल सन की, मुसरफ बेटे की, दैट शुड बी नंबर 1 तमसील, नंबर 1 पैरेबल। लेकिन यीशु मसीह ने उसको नंबर 3 पे रखा है, और जो नंबर 3 पे होनी चाहिए थी, ओनली 1% नुकसान हुआ है, और उसको नंबर 1 पे रखा है। ऐसे लगता है कि इस तमसीलों को लिखने का मकसद और मुकद्दस लूका का इनको बयान करने का मकसद कोई मैथमेटिकल या अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वो देख रहा, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ निगाह से, एक डिवाइन लव की नजर से, खुदा की मोहब्बत जो डिवाइन लव है उसके पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि वहां पर परसेंटेज की कोई अहमियत नहीं होती, और वहां पर सबसे बड़ी अहमियत इस बात की होती है कि किसका कितना नुकसान हुआ, उसको उसका कितना दुख हुआ, वो कितनी परेशानी में मुब्तला है। खुदा की नजर में छोटा या बड़ा इसकी कोई अहमियत नहीं है। खुदा की नजर में इस बात की अहमियत है कि किसने खुदा को कैसे ढूंढने की कोशिश की है। यीशु मसीह ने एक और तमसील बयान की थी इसी तरह से कि बहुत से लोग हैकल में गए, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खुदा की हुजूरी में दिया, लेकिन एक औरत ने सिर्फ एक दमड़ी, एक पैसा खुदा के घर में दिया। परसेंटेज के लिहाज से शायद उसने सबसे थोड़ा दिया, लेकिन जो कुछ उसके पास था उस परसेंटेज के हिसाब से उसने 100% दिया। तो खुदा अब मैं एक दो करना चाहता हूं। वो जिस शख्स की 99 भेड़ें थी, उसकी भेड़ क्यों खो गई? या वो लापरवाह था, या वो तस्वीरें खिंचाने के चक्कर में पड़ा था। पता नहीं इसकी क्या वजह थी कि उसको ये शौक था कि मैं तस्वीर खिंचवाऊं, या हो सकता है कि वो गडरिया सो रहा हो, ये भी इसकी वजह हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि किस वजह से उसकी भेड़ खो गई, लेकिन भेड़ जिस किसी वजह से भी खोई, वो इंतहाई कंसर्न था कि मैंने उसे ढूंढना है और उसको ढूंढ कर लाना है, और जहां कहीं भी है मैं उसको ढूंढूंगा। जो तरीक़ाकार उसको उस दौर में था, उसने अपनी आवाज निकाली, उसकी भेड़ ने उसकी आवाज पहचानी, फाइनली ही गॉट बैक हिज शीप। और जब वो लेकर आया तो फिर उसने क्या किया, उसने लाकर भेड़ अपने बाकी भेड़ों में शामिल की, और भेड़ों में शामिल करने के बाद उसने अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि आओ मेरे साथ खुशी करो। दूसरी तमसील जो 10% की तमसील है, और इस तमसील में हम देखते हैं कि औरत थी, औरत के पास एक हार था, उस हार में 10 कॉइन थे, और ये जो 10 कॉइन थे, कुछ उलेमा कहते हैं कि उस दौर में जब शौहर किसी लंबे सफर पर जाते थे तो वो अपनी बीवियों को इस तरह के हार दिया करते थे, और इस हार का मतलब ये होता था कि ये एक तो सोने या चांदी के सिक्के हैं, ये मुश्किल वक्त में उनके काम आएंगे, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो ये इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसका मकसद ऐसे नहीं था कि अगर वो पैसे देकर चला गया तो इसकी वो शॉपिंग करते फिरें। कई दफा ऐसे होता है, बीवी को शौहर पैसे देकर चला जाए, कई दफा बीवियां भी शौहर को पैसे दे देती हैं और कहती हैं कि अच्छा रख लो, वो पैसे किसी बुरे वक्त च काम आएंगे, तो बंदा जाकर बाहर जाके होटल च रोटी खांदा है, या बीवी जो है वो कपड़े लेकर या कोई ना कोई और चीज इस्तेमाल कर लेती है, और जिस असल मुश्किल के लिए वो पैसे जब इस्तेमाल होने होते हैं तो तब उसके पास नहीं होते। ये औरत किसी वजह से इसका एक कॉइन खो गया, तो उसने जो भी उसको तरीकाकार मिला कि कैसे मैंने इसको ढूंढना है, कैसे मैंने इसको तलाश करना है, वो बेचारी सारे घर में झाड़ू देती रही
और झाड़ू दे देकर वो फिर उसको कोई लाइट ऑन करके झाड़ू देने की जरूरत पड़ी तो अपनी लालटेन या अपना लैंप ऑन करके उसने झाड़ू दिया, और फिर फाइनली ही गॉट, अपना कॉइन उसको मिल गया। और जब उसका कॉइन उसको मिल गया तो उसने वो 10 कॉइन पूरे किए और अपनी पड़ोसियों को बुलाया और उनके साथ मिलकर उसने खुशी की कि ये मेरा कॉइन, ये मेरा सिक्का, ये मेरा माल जो खो गया था अब मुझे वापस मिल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, और एक बेटा वो किसी भी वजह से अपने गलत तरीक़ेकार जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो अपने बाप से अपना सारा माल ले लेता है। इस तरह आम घरों में होता है। कई दफा माँ बाप बेचारे सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, कमेटियां पा के पैसे जोड़ते ने, और किसी ना किसी तरीके नाल थोड़े बहुत जेडे पैसे घर च रखे हुंदे ने, मुंडियां दी नजर उन्हां ते हुंदी है, और आके वो मां प्यार नूं कोई चकमा देंदे ने, कोई गल सुणांदे ने, कोई कहानी सुणांदे ने, और बड़े कोई लंबे चौड़े नवे नवे प्रोजेक्ट विखांदे ने कि अबू, अब्बा जी, डैडी या मामा, अगर हम इसको इस जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे, अगर हम ये कारोबार कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कोई सब्ज बाग बेचारे विखांदे ने, और फिर इसके नतीजे में वो उन पैसे को, कई माँ बाप के पास पैसा होता है और वो उनकी बेचारों की रिटायरमेंट का सारा पैसा उनको मिला होता है, वो ले जाते हैं। कुछ लोगों ने कमेटियां डाली होती हैं, वो पैसा ले जाते हैं, और फिर फाइनली वो जो कहीं भी कारोबार करते हैं, जो कुछ करते हैं, और फिर सारा पैसा गंवा देते हैं, और फाइनली फिर वो अपने माँ बाप को बताते हैं, या माँ बाप को पता चलता है कि हुण साडे मुंडे नाल ऐ बनन डई है। रोते हैं, परेशान होते हैं, दुख होते हैं, बाप को टेलीफोन करके बताते हैं, या चिट्ठी लिखकर, या ईमेल करके, या फिर जिस तरीके से भी कि वो जो सारा माल चाल है वो खो गया है। तो बाप फिर कहता है हुण कोई गल नहीं पुत्र, आ जा, उसको अपने गले से लगा लेता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप, रिश्ते, ताल्लुकात इसी काम के लिए होते हैं। यहां पर 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सच्ची मोहब्बत होती है उसमें हिसाब किताब नहीं होता। हिसाब किताब होता है ये कुनबेदारी में और मिलने जुलने में और शरीके बरादरी में। वो कहते ने फलाने का विआह हो रहा है, वेखो ने सानू की दिता सी, वो कहते उन्हें 2000 दिता सी, तो चलो तुसी 2100 दे दो, फिर 100 वध ही देन डे, घट ते नहीं देन डे। हम ये नहीं देखते कि वो बेचारे गुरबत ना मरन डे, उन्होंने जरूरत की है। और कई लोग जब देने का किसी की मुश्किल में कोई वक्त आता है तो कोई ना कोई लड़ाई पाके बह जाते हैं, चलो देना ही ना पवे सानू, और कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर लेते हैं कि चलो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पंजाबी दी एक मशहूर कहानी है, सुनी होगी तुसी। किसी कुड़ी दा विआह सी, ओदे 7 मामे सन, ते मां ने कहा कि ये फिक्र ना कर, तेरे 7 मामे ने, तेरा जहेज ऐसा होएगा दुनिया वेखेगी, तेरे मामे तेनू लद देंगे। ते एक मामा जड़ा सी वो बड़ा चलाक सी, उन्हें अपने मुंडे नू कहा, रात अंधेरा था, उन्हें कहा बकरी खोल ते चल, तेरी भैन दा विआह वे, मेरी भांजी दा, ओनू मझ दे आईए। उन्हें कहा बाजी ये ते बकरी है, वो कहता रात के नेरे च बकरी भी मझ बन जाती है, चल तुर मेरे नाल। वो उसको लेके चला गया। अब 1-2 दिन शादी के रह गए थे, तो तुहानू पता पहलों जो विआह हुंदे सी ते जिन्हां दे घर च जेज हुंदा सी, उन्हां नूं वड्डा डर हुंदा सी किते चोर ही ना आ जाण, क्योंकि चोर भी आखिरी दिनां च आंदे सन। अब रात का अंधेरा था, वो मामा जड़ा सी वो अपने मुंडे नूं बकरी लैके ते पहुंच गया अपने बहनोई के बहन के घर, और आकर उसने बाहर से आवाज लगाई तो अंदर से उन्हें पूछा कि कौन है। उसने अपनी बहन का नाम लिया, जो भी उसका नाम था। वो कहता मैं फलानी दा भरा वां। अब उसके तो 7 भाई थे। अंदर से बहनोई किते गलती ना पूछ बैठा, केड़ा भी 7 भरा जे केड़ा है। अपने मुंडे नूं कहंदा चल मुंडिया मझ खोल किले तो, असीं ते इन्नी दूरों मझ देण आए सन। ये को पुछदा केड़ा, केड़ा ते फिर केड़ा ही सही।
ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾ के ਤੇ बकरी लेके चला गया। शादी हुई और वो वहां पे नजर ही ना आया। लोगों ने कहा कि तेरी भाजी का विआह तू गया क्यों नहीं विआह ते? उन्हें कह लै मैं मझ लैके गया सा ते अंदरों मेरा भणवैया कहंदा सी किहड़ा है, ते मैं भी आख्या जा फिर किहड़ा है ते किहड़ा ही सही। उन्होंने कहा भी कोई आया सी परसों रात तुहाडे घर? उन्हें कहा हाँ आया सी। उन्हें कहा कौन आया सी? कहंदा मेरी बीवी का भरा सी। कहंदा पर हुण मैनूं की पता सी किहड़ा सी, मैं ते पुछया सी किहड़ा है, ते वो अगों मेरे नाल लड़ के चला गया। कहंदा जा फिर किहड़ा है ते किहड़ा ही सही। इस तरह के रिश्तों की हमें जरूरत नहीं, जो मुश्किल के वक्त में केड़ा ते फिर केड़ा सही की लड़ाई पा के चले जान। मुश्किल में वो रिश्ते काम आते हैं जो अपने ताल्लुकात को हिसाब किताब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुश्किल में किस तरह से अपने बहन भाइयों के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। रिश्तेदारों, रिश्तों और जिम्मेदारियों और एतमाद को संभालना पड़ता है, माजी को दरगुजर करना पड़ता है। बाप ने वो सब कुछ भुला दिया कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन उसने उसे गले लगा लिया। लेकिन दूसरे भाई ने उन सबको भूलने में बड़ी देर की, मुश्किल हुई। यीशु मसीह ने ये बातें फकीह और फरीसियों से इसलिए कही थी कि तुम अच्छे हो, लेकिन दूसरों को उनकी मुश्किलात में फंसे हुए पाकर उनको मुश्किलात में से निकालने के बजाय उन पर उंगली उठाना, उन्हें क्रिटिसाइज करना और उन पर इत्मीनान ना करना ज्यादा मुनासिब समझते हो, निस्बत इसके कि तुम मुश्किल में उनकी मदद करो। इन 3 तमासील से हम ये बात सीखते हैं कि खुदावंद हमें अपनी मर्जी के मुताबिक रिश्तों को, ताल्लुकात को, दोस्तियों को, सब चीजों को निभाने की तौफीक अदा करे। और हमारे जो बहन भाई, हमारे जिस्म के हिस्से, हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात, हमारी दोस्तियां, हमारा मालो दौलत, हमारे सिक्के, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी भेड़ें जो खो गई हैं, उनको वापस कैसे लाना है। और आखिर में मैं पंजाबी के चंद शेर इनको कंक्लूड करने के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तमसील अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से तो यरूशलेम के करीब किसी इलाके में कही गई थी, लेकिन यीशु मसीह की अक्सर तमासील झील के किनारे पर, गलील की झील के किनारे पर कही गई हैं और उसी के गिरदोनवा में कही गई हैं। इससे हम ये भी देखते हैं कि इन तमासील के अंदर, इन तमसीलों के अंदर इंजील है, खुशखबरी है। खुशखबरी हर उस शख्स के लिए जो आसानी से समझ सकता है और जो नहीं समझना चाहता, जिनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका है, नजर नहीं आता, देखते हुए नहीं देख सकते, उनके लिए इन आसान कहानियों को समझना आसान नहीं, बहुत मुश्किल, बल्कि किसी हद तक नामुमकिन है। क्योंकि तमसील वो जुबान होती है जिहदे पंजाबी च जिहदे बारे च कहंदे ने गूंगे दी रमज़ां गूंगे दी मां भैन जानदी है। उसे ही समझ आती है कि गल कहण की दिया है, गल होण की डई है। सोहणे रब दी सच्ची दलील सुनी दी, सोहणे रब दी सच्ची दलील सुनी दी, ए दलील दे विच गलील सुनी दी। सोहणे रब दी सच्ची दलील सुनी दी, इस दलील दे विच गलील सुनी दी, उस गलील दे विच एक झील सुनी दी, उस गलील दे विच एक झील सुनी दी, उस झील दे कंढे तमसील सुनी दी। उस गलील दे विच एक झील सुनी दी, उस झील दे विच तमसील सुनी दी, उस तमसील दे विचों इंजील सुनी दी, सोहणे रब दी सच्ची दलील सुनी दी। ये शेर
मेरे एक दोस्त मुश्ताक असद हैं, उन्होंने कहे हैं कि किस तरीके से हम झील के किनारे पर कलील में कही गई तमसील के अंदर खुदा की दलील और उस दलील के अंदर इंजील सुन सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सबको कुव्वत और ताकत अता करे कि हम मुकद्दस लूका की तरह जो कुछ हमारे दरमियान में वाकया हुआ है उसे लिख सकें, सुना सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें। और कलीसिया की दास्तान जिस तरह उन्होंने रसूलों के अमाल द बुक ऑफ एक्ट्स की शक्ल में दुनिया तक पहुंचाई, हम भी अपनी कलीसिया की दास्तान दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आखिर में मैं फिर बिशप प्रदीप कुमार समंतराय का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि सैकड़ों हजारों माइल्स के फासले से भी हम मसीह में एक हैं, हम इकट्ठे मिलकर दुआ कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर द लीडरशिप ऑफ बिशप प्रदीप कुमार समंतराय, for the love and concern and passion he has for the gospel of Jesus Christ. And thank you very much, Bishop Saab, for your kind invitation and providing me opportunity to share the word of God. God bless you and your ministry. Thank you, my friend, my brother, Reverend Rana Khan. मुझे तो लग रहा था कि हम सुनते रहें, पर आप खत्म कर दिया। तो now you have to prepare the next sermon for us. फिर जो मौका आएगा तो फिर आप हमें फिर से प्रभु का वचन सुनाएंगे। God bless you and your family, your ministry. And आप हमारा क्या लगते हैं? भाई लगते हैं ना, बंधु लगते हैं ना। यीशु मसीह ने हमें किया है और आपने जैसे जितना हमें प्यार दिया है, देते हैं, ऐसे ही खुदा भी सबके तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार दे और आपका देखभाल करे और आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। आप हमेशा हमारे प्रार्थना में रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जो वचन हमने सुना उससे हम खुदा को देख सकते हैं, खुदा के प्यार को देख सकते हैं, खुदा के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसको देख सकते हैं। तो आइए जो क्रीड के लैंग्वेज में है हम हमारे विश्वास को अफर्म करें। लेट अस अफर्म आवर फेथ इन द लैंग्वेज ऑफ द अपोस्टल्स क्रीड। उसमें हम लीड करेंगे मिसेस सरोज नेगी जो कि शिमला के हैं। बेन सरोज। आइए एक बार हम फिर से अपने विश्वास वचन को दोहराएं। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखती हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के तहते बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, उस मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखती हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर सरोज नेगी। अभी अनाउंसमेंट का टाइम है। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं
सबको जय मसीह की। और मुझे इस बात को दोहराने के लिए खुशी होती है कि आई ऑलवेज लॉन्ग टू सी यू ऑन दिस डे, जबकि हम वर्चुअल वर्शिप में शामिल होते हैं। और खुशी है कि बहुत सारे हमारे चर्चेस खुल गए हैं और चर्चेस में सर्विस से शुरू हो गए हैं, पर फिर भी आप इस ऑनलाइन वर्शिप में शामिल होते हैं। और ऐसे ही हम जब तक आप चाहेंगे इस फेलोशिप को वर्चुअली कंटिन्यू करेंगे। दो स्पेशल अनाउंसमेंट हैं। एक है कि एवरी लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ इज being observed as the Diocese Day of Fasting Prayer, and not only in our diocese but जितने भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में डायसिस हैं। और इसलिए इस महीने में 30th अक्टूबर जो कि फ्राइडे है, उसमें नॉर्थ इंडिया प्रेयर फेलोशिप की तरफ से कि फास्टिंग प्रेयर 11 बजे से 2 बजे तक किया जाएगी। और इस टाइम अमृतसर डायसिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम उसको लीड करें। आई वुड विश कि हम एवरी फ्राइडे हो सके तो फास्टिंग प्रेयर करें, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू कनेक्ट विद गॉड एंड टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर फैमिली, in our church, and also transformation in our country, कि प्रेयर के माध्यम में, प्रार्थना के माध्यम में हम अपने परिवार को, अपनी चर्च को, अपनी कम्युनिटी को और अपने देश को बदल सकते हैं। तो इसलिए याद रखिए 30th अक्टूबर 11 बजे से 2 बजे तक फास्टिंग प्रेयर हम करेंगे और इट विल बी ऑन जूम, और ये लिंक आपको समय पर दिया जाएगा। और एक अनाउंसमेंट है, वो भी अहम है, कि क्योंकि कोविड-19 महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसमें सबका योगदान चाहिए, पर एज ए चर्च हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि ऑलवेज द चर्च हैज बीन प्रोएक्टिव, आज के दिन में चर्च को हमारे देशवासियों के सामने विजिबल होनी है, एंड देयरफॉर टू मेक द चर्च विजिबल एंड टू टेल द कंट्री पीपल दैट वी केयर, इसलिए अमृतसर डायसिस की तरफ से एक बाइक रैली, जिसमें नॉट ओनली मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल, स्कूटी और इवन मॉपेड कुछ भी हो, क्योंकि ये लोकली हो रहा है अमृतसर में, पर इसमें हिमाचल से एक टीम और जम्मू कश्मीर से एक टीम आ रही है पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दिस विल बी कवरिंग द 3 स्टेट्स, और वी आर होपिंग कि एटलीस्ट 100 बाइक्स होंगे। इनफैक्ट हमें अबाउट आई थिंक 170-80 नाम आया था बाइकर्स का, पर जब हमने कहा कि सिर्फ जिनके पास लाइसेंस है, वो भी कहने से नहीं, वो लाइसेंस का फोटो हमें भेजें ताकि हम उनकी एंट्री को हम जो रजिस्टर करें, तो बहुत सारे विकेट गिर गए। और मे बी आई थिंक 50-60% जो हैं यूथ, पता चला कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग फैक्ट, और पर वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा मैसेज लेकर सबको देना चाहते हैं। तो ये ना हो कि हम अपनी जो अपना डिसिप्लिन उसको हम कॉम्प्रोमाइज करें। सो सॉरी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने नाम दिया था, पर जिनका नाम हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पर आप जल्दी से लाइसेंस बनाओ, ताकि ये जो मूवमेंट अमृतसर डायसिस के द्वारा ये इनिशिएट किया गया है, पर इसमें हमें बहुत सारे एनजीओज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को और रिलीजियन बेस्ड
ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर चलेंगे और ये मूवमेंट जो है क्रिसमस तक चलेगा। सो गेट रेडी विथ योर लाइसेंस, क्योंकि जो मेरे माइंड में है, मैं रिवील करता हूं कि our next out of Punjab rally will be to New Delhi. So get ready for that. और इसके लिए यूनिफॉर्म है ब्लैक टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता और उसके साथ ब्लू जीन्स प्रेफरेबल, बट ब्लू जीन्स नहीं है तो आप किसी भी कलर का ट्राउजर पहन सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, ये सेंट पॉल चर्च में सारे बाइकर्स 12 बजे तक शामिल होंगे और 12 बजे से 2 बजे तक हम कुछ कार्यक्रम करेंगे एंड द मोटरसाइकिल रैली विल बी फ्लैग्ड अप होपफुली बाय द डीसी अमृतसर। और उसमें हम आशा करते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स एंड एमपीज भी शामिल होंगे। तो खासकर जो लोकल बाइकर्स हैं या आसपास के बाइकर्स हैं, आप इसमें अभी भी नाम नहीं दिया है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो जरूर आप अपने प्रेस्बिटर इंचार्ज के माध्यम से आपका नाम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भेजिए, शक्ति मल को या डिकन मार्कुस को या प्रीता सामंतराय को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और अभी हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे, जो कि बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर दानियल बी दास जो कि एसीडीबी का ऑनररी डायरेक्टर हैं और प्रॉपर्टी मैनेजर हैं, और जो रिक्वेस्ट अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया आप दे सकते हैं, जिसको हम हमारे डेली ऑफिस प्रेयर में और फैमिली प्रेयर में हम शामिल करेंगे। नाउ मिस्टर दानियल बी दास तरन तारण के हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, महान प्रभु, तमाम दुनिया के खालिक और मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस मौके के लिए तूने हमें दिया है कि हम सब मिलकर के दूर नेड़े के जितने भी लोग हैं तेरी हुजूरी में हाजिर हो सकें, तेरी महिमा कर सकें, तेरी उस्सत कर सकें, तेरी बढ़ाई कर सकें और तेरा धन्यवाद कर सकें। आए प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो इस कोविड-19 की वजह से अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में नहीं जा सकते हैं। विशेष करके उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर जो ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकते हैं गरीबी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट ना होने की वजह से। आए प्रभु परमेश्वर, होने दे कि हम उनके लिए चिंता कर सकें, उनकी मदद कर सकें और उनकी अगुवाई कर सकें। आए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त बीमार हैं, विशेष करके सिस्टर रजनी प्रीदा के लिए जो सीएमसी विलोर में कीमोथेरेपी जिनकी हो रही है। आए खुदा बाप, उनके ऊपर और उनके जो डॉक्टर्स देखभाल कर रहे हैं उनके साथ हो और उनकी मदद कर, तंदुरुस्ती इनायत कर। आए प्रभु, हम शरण के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्किन इन्फेक्शन पीड़ित हैं। अमृता प्राची के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोई दुख है, तकलीफ है, उसको परमेश्वर दूर कर। हम अजय सिंह, पादरी सिंह की मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर से दुखित हैं। आए प्रभु परमेश्वर, अपने पवित्र हाथ से छू और उनकी तंदुरुस्ती बख्श। आए प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती राजकुमारी के लिए जो बैक पेन से पीड़ित हैं। आए खुदा बाप, उनको तंदुरुस्ती बख्श। आए प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये सब बीमार, दुखी, लाचार, चाहे हम जितना भी डॉक्टर्स का
वैद्यों का, हकीमों के द्वारा इलाज करवाएं, पर शिफा तेरी तरफ से है, क्योंकि तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है। आए प्रभु, जिनके लिए भी हमने प्रार्थना की है और भी जिनके जो बीमार हैं, लाचार हैं, मरने के किनारे हैं, आए खुदा बाप तू उन सबके लिए सबको शांति दे, उनको तंदुरुस्ती दे और अपने पवित्र हाथ से छू। आए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन मौकों के लिए जो तू हमें देता है खुशी के, विशेष करके सोफिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जिसका कल जन्मदिन है। खुदा बाप होने दे कि ये बच्ची तेरे नाम में बढ़ती जाए, जैसे जैसे अपने कदो काम में बढ़े वैसे वैसे तेरे नाम में बढ़ती जाए। और होने दे प्रभु कि जो गुज़श्ता साल में उससे कोई गलतियां हुई हैं, कमजोरियां रही हैं, वो दोबारा ना हो पाए, और आने वाले साल में जो उसे अच्छे काम किए हैं और उसको अपने साथ लेके चल, और खुदा बाप उसकी जिंदगी में और भी अच्छाइयां पैदा कर, लंबी उम्र दे और उसकी जिंदगी में सफलता दे। आए प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम अपने तमाम मसीह कलीसिया के लिए, विशेष करके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मार्थुमा चर्च के लिए, और अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लीडर्स, अपने मॉडरेटर, अपने जनरल सेक्रेटरी, अपने ट्रेजरर और जितने भी बिशप्स, प्रीस्ट और डीकन्स हैं। आए प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इन सबको बुद्धि दे, अक्ल दे, दनाई दे, ताकि खुदा बाप जो भी फ्राइज इनके जिम्मे लगे हैं उन फ्राइज को तेरे से डरते हुए और कांपते हुए ईमानदारी से उनको बजा लाए। आए खुदा बाप, उनको अपने जाति मफादों से, लालचों से, बुराइयों से, बुरे सलाहकारों से बचा के अपनी पनाह में रख, ताकि वो खुदा बाप तेरी और केवल तेरी गवाही के लिए, तेरे कलाम की बशारत के लिए काम कर सकें। अपनी डायसिस के लिए, डायसिस के बिशप डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमंतोरॉय जी के लिए, उनकी तमाम टीम के लिए, तमाम प्रीस्टों के लिए, डीकनों के लिए, एवेंजलिस्टों के लिए प्रार्थना करते हैं। आए प्रभु परमेश्वर, होने दे कि ये डायसिस दिन दुगनी और चौगनी तरक्की करे, तेरे नाम की गवाही के लिए आगे बढ़ सके। आए प्रभु, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं 20 तारीख की जो बाइक रैली है, आए खुदा बाप होने दे कि ये रैली तमाम उन लोगों के लिए जो तेरे नाम को नहीं जानते, विशेष करके उनके सामने एक गवाही का बायस बन सके, तेरा चर्च तेरा विजिबल हो सके, दिखाई दे सके, और दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके, ताकि इस महामारी के दिनों में तेरे नाम को बढ़ाई मिल सके। आए प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के हाकिमों के लिए, विशेष करके खुदा बाप जो इंसानी हकूकों का हनन हो रहा है, औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, बच्चों के ऊपर अन्याय हो रहा है, और गरीब मजदूरों का अधिकारों का हनन हो रहा है। आए प्रभु परमेश्वर, तू उन हाकिमों को जिनको तू तेरी तरफ से जिम्मेवारियां मिली हैं प्रभु परमेश्वर, होने दे कि उन जिम्मेवारियों को तेरी मर्जी के अनुसार पूरा कर सकें, और जो भी गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े हो सकें और न्याय कर सकें। आए प्रभु परमेश्वर, हम सब ने मिलकर के तेरे सामने अपनी ये तमाम इल्तिजाओं को पेश किया है। आए प्रभु परमेश्वर, तूने हमारी कभी भी इल्तिजाओं को, बेनतियों को, दरख्वास्तों को नज़रअंदाज नहीं किया, और आज भी हमें यकीन है, विश्वास है कि हमारी प्रार्थनाएं आपने सुनी है और इनका आप उत्तर भी देंगे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। थैंक यू दानियल जी फॉर प्रेइंग फॉर अस। हम दानियल जी के लिए दुआ करेंगे क्योंकि उनके गॉल ब्लैडर्स में बहुत सारे स्टोन्स हैं और उनकी सर्जरी होने जा रही है।
So we will pray for Mr. Daniel Vidas. प्यारे पिता परमेश्वर, हम दनिल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जो सर्जरी होगी उसके लिए सारे इंतजाम तू कर ले और उनको तो इस प्रॉब्लम से उद्धार कर, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, करने के लिए उनको शक्ति और सामर्थ्य दे। उनको, उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर प्रेम बेंजामिन, जो कि चंबा के हैं, और हम उनके साथ मिलकर अपनी भाषा में, जो उड़ीसा से हैं, उड़िया में, और हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में हम कर सकते हैं लॉर्ड्स प्रेयर। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में लीन हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू प्रेम बेंजामिन जी। Once again, thank you for joining us. ये आप मेरा परिवार हो, and I'm so proud that you are part of our family.